નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દીની અંદર ઘણા બધા સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નોત્તર અને વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર સાથે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરની અંદર નાના પ્રશ્નો પણ જોઈએ છીએ, જેમાં અલગ અલગ કાવ્યો અને પાઠના આધારે આવનારી પરીક્ષાની અંદર મોસ્ટ આઈપી પ્રશ્નો તરીકે પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નો અહીંયા આપણે અલગ અલગ જોતા રહીએ છીએ। એવી જ રીતે અહીંયા આપણે 15મો છે પાઠ દાજ્યું, જે પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય। જે પાઠ આપેલો છે શેખર જોશીએ, જેમનો જન્મ સન ઈસવીસન 1932માં થયેલો। તો આ પાઠને લગતા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એમાં હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર તો જોઈએ છીએ, સાથે સાથે સ્વાધ્યાયલક્ષી પ્રશ્નોત્તરની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો સ્વાધ્યાયને લગતા જે મોટા પ્રશ્નો છે એમની અહીંયા વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરશું, સાથે નાના પ્રશ્નો છે સ્વાધ્યાયના એ બીજા વિડીયોની અંદર મુકાશે, જેમાં હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર તરીકે બીજા પ્રશ્નો પણ છે, સાથે વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નો પણ એમાં જોવા મળશે। તો આ સિવાયનો બીજો વિડીયો આવે એ પણ તમે જોજો। એના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં બેલ આઇકન આવશે ને, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાની, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય ને એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને સૌપ્રથમ જાણ થઈ જશે કે આ વિડીયો મુકાયેલો છે, એ તમે તાત્કાલિક જોઈ શકો। તો આ પાઠને લગતા દરેક સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર તો છે જ, સાથે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર પણ મુકાય છે। આ પાઠ સિવાયના કોઈ પણ કાવ્ય કે પાઠના જે પ્રશ્નો જવાબ છે એ પણ મુકાયેલા છે, એ ન જોયેલા તો એ પણ તમે પ્રશ્નો જવાબ છે જોઈ લેજો। ઉપર ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટમાં જાજો, પ્લેલિસ્ટની અંદર નીચે તમને સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, જેમની અંદર હિન્દીને લગતા બીજા પાઠ અથવા કાવ્યના લગતા હેતુલક્ષી અને વ્યાકરણલક્ષી એટલે કે બરાબર નાના પ્રશ્નો છે એ પણ જોવા મળશે, ને સાથે મોટા પ્રશ્ન તરીકે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે તો એ પણ તમને અલગ અલગ વિડીયોઝ દ્વારા જોવા મળશે। તો એ ન જોઈ લે તો એ પણ જોઈ લેજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો ને એ પણ શેર કરજો તમારા મિત્રોને। આ પાઠને લગતા જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે એ જોતા જઈએ, બરાબર। વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી દરેક પ્રશ્નનો જવાબ શું છે એ ખ્યાલ આવે। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। जहाँ पे भी स्टार वाला निशान है वो सभी क्वेश्चन स्वाध्याय के हैं। पहला वाला है, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था? उसका उत्तर है, जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया है? उसका उत्तर है, मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकाकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सूनापन महसूस करता है। उसे सब कुछ पराया अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने उसकी भावनाओं को विचित्र बताया है। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? उसका उत्तर है, कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजियू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजियू बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा भरा था। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, जगदीश बाबू ने मदन को दाजियू कहने पर क्यों डांटा? उसका उत्तर है, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था।
वह उन्हें दाजियो बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजियो कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। उससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था, इसलिए उन्होंने दाजियो कहने पर मदन को डांटा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, दाजियो कहानी में बालमन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, वो समझाइए। उसका उत्तर है, दाजियो कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजियो कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजियो कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह सिसकिया भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजियो नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला है, जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे कर लिया। उसका उत्तर है, कैफे में बॉय मदन को देखकर उन्हें लगा था कि शायद यह उन्हीं के यहाँ का लड़का है। बाद में मदन से वार्तालाप करके उन्होंने जान लिया कि उनकी शंका सच थी। इस तरह उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। दूसरा है, मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच क्यों अनुभव कर रहा था। उसका उत्तर है, मदन के गांव का नाम डोटियालोगो था। अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे उसका नाम बताने में संकोच हो रहा था। तीसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की शाई कैसे दूर हो गई। उसका उत्तर है, जगदीश बाबू कैफे में आने से पहले बहुत एकाकीपन महसूस कर रहे थे, परंतु मदन से बातचीत होने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह उनके गांव के पड़ोसी गांव का लड़का है। इस प्रकार मदन के प्रति अपनेपन का भाव आने पर जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की शाई दूर हो गई। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मदन जगदीश बाबू को दाजियो कहकर क्यों संबोधित करने लगा। उसका उत्तर है, जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। उस क्षेत्र में बड़े भाई को दाजियो कहते हैं। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजियो कहकर संबोधित करने लगा। पांचवा प्रश्न है, मदन के दाजियो शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया। और अथवा ऐसा भी पूछ सकते हैं, जगदीश बाबू को मदन का दाजियो बनना क्यों पसंद नहीं आया। तो उसका उत्तर है, मदन कैफे का एक साधारण बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाजियो कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा। इसलिए मदन के दाजियो शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। उसका उत्तर है, मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरा प्रश्न है, मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। उसका उत्तर है, मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजियो मतलब बड़े भाई की छाया निकट जान पड़ी। तीसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया। उसका उत्तर है, अपने ही क्षेत्र के कैफे बॉय मदन के मिल जाने से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। चौथा प्रश्न है, जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था। उसका उत्तर है, मदन का बार बार दाजियो कहकर संबोधित करना जगदीश बाबू को पसंद नहीं था। पांचवा प्रश्न है, जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे। उसका उत्तर है, जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। छठा प्रश्न है, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। उसका उत्तर है, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। सातवां प्रश्न है, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को
चोट क्यों पहुंची? उसका उत्तर है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। 8वां प्रश्न है अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? उसका उत्तर है अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। 9वां प्रश्न है मदन जगदीश बाबू को क्या कहकर संबोधित करने लगा था? उसका उत्तर है मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर संबोधित करने लगा था। 10वां प्रश्न है दाजू का अर्थ क्या है? उसका उत्तर है दाजू का अर्थ बड़ा भाई होता है। 11वां प्रश्न है मदन को किसका भेद मालूम हो गया? उसका उत्तर है मदन को पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया था। 12वां प्रश्न है मदन के मन की व्यथा कैसे दूर हो गई? उसका उत्तर है सिसकियाँ भरकर रो लेने से मदन के मन की व्यथा दूर हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों आ હતા પાઠને લગતા સ્વાધ્યાયના અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબો, જેમાં ખાસ કરીને મોટા પ્રશ્નો છે એ જોયા, સાથે નાના પ્રશ્નો પણ થોડાક હતા। બીજા પણ સ્વાધ્યાયને લગતા નાના પ્રશ્ન જવાબ છે એ બીજા વિડીયોની અંદર આવશે, જેમાં વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર પણ જોવા મળશે। તો હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરનો બીજો વિડીયો છે એ પણ મુકાશે, તો એ પણ જોજો બરાબર। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમામ મિત્રોને। સાથે બીજા પાઠને લગતા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાતા હોય છે, તો ઉપર ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને ત્યાં નીચે સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે। એની અંદર બીજા પાઠને લગતા સ્વાધ્યાયના અને હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર, વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર બધા તમને જોવા મળશે, તો એ પણ જોઈ લેજો। ન જોઈએ તો આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી પણ થઈ જશે। અલગ અલગ વિડીયો દ્વારા તમારું જ્ઞાન વધતું રહેશે, તો નવા નવા વિડીયો જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। ન જોયેલા વિડીયોઝ જોઈ લેજો, સાથે નવા નવા વિડીયોઝ છે ચેનલ પર મુકાતા હોય છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો। ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।